for hosting these meetings. I remember how our Mission Bunyad Zoom meetings, such informal and chaotic meetings, they paved way for these structured and professional meetings, all by your invested time and effort. Thank you, sir, and your kudos to you. cooperation and inspiration from Rohit sir, Rohit bhai. Sure. You have always been a humble personality. We know that. So let's move on. I welcome our mentor, Dr. Anil Teotia, sir, for being a constant source of inspiration and encouragement to all of us. Sir, your sharings, your insights, they help us conclude our learnings. Otherwise, we would have just been, like that, but we are able to concretize our learnings with the help of your insights. So thank you so much. You people. Thank you, sir. As usual, you're also the most humble person I know. I welcome all the participants in this session. Thank you for giving your precious time in these testing times of Corona. And I hope that you all are keeping safe and sound, keep indoors and keep safe. Now, let me introduce today's speaker, Dr. Ashok Tiwari ji, a dear friend and a colleague, who's a very humble, compassionate, dedicated educationist, poet, writer, and a theatre personality. We all know him as a maths person and a maths mentor teacher. That's true. He has 30 years of rich teaching expertise with him. He's been teaching in the department since 1990. And as a mentor teacher, he's been involved in content creation. And these days, he is developing EMC content. In addition to this, he's a poet and a writer, as I've already mentioned. He has many books published in his name. To name a few, Dhar Kafi Hai, Subhash Chandra Bose और आजाद हिंद फौज भाग 1 और 2. ये तो कुछ नाम है, लिस्ट बहुत लंबी थी. Also, he is a renowned name and a face in the theatre circle. He is associated with a theatre group named Jan Natya Manch since 1987. Jan Natya Manch was established in 1973 by Safdar Hashmi Sahab. And he was murdered in 1989 during staging of one of his plays because of his ideology. Well, I happened to experience Ashokji's theatrical expertise during one of his plays, which he staged in my mentee school, SBV Kondli. And this play was about Gautam Buddha. It was staged for the students and the teachers of that school. I was present there. I can't tell you it. After watching the play, it actually shook my vulnerabilities and it brought tears into my eyes. I also expressed my emotions in my blog, and I can forward the link to all of you for further reading if you are interested. Bringing this theatre thing into education, Ashokji has been incessantly working hard to bring theatre into the classrooms. And today he will be presenting his work on theatre in maths class with all of us. So let's have the pleasure to listen to Ashokji. And before that, as usual, I would request all the participants to keep penning down your questions and your comments and suggestions in the chat box. As time permits, we'll be taking up these questions one by one. And in case some questions are left unanswered, we'll be forwarding these questions to Ashokji, and you can connect with him as per your convenience. Thank you, and over to Ashokji. Okay, thank you, Anju madam, Uma Shankar sir, and my mentor, obviously, Anil Teotia sir. तेवतिया सर से मैंने बहुत कुछ लिया है. एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेवतिया जी का नाम और अजय चौबे जी का नाम अगर मैं ना लूँ तो मैंने मैथमेटिक्स का मेरा वो जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट होती है डेफिनेटली. और उनसे मैंने बहुत लर्न किया है. मेंटरशिप में आने से पहले ही तेवतिया सर के साथ कई बार वर्कशॉप में, सेमिनार में उनसे काफी बात होती थी. उनसे सीखने को मिलता था कि कैसे कैसे वर्कशॉप में जाना है, क्या करना है, उन सब चीजों को लेकर के. तो मैं उनका, मेरे ख्याल है, मुझे वाकई दिल से मैं एक आभार उनका व्यक्त करता हूँ कि मुझे मैथमेटिक्स को समझने की समझ, मैथमेटिक्स को कैसे समझा जाए, इसकी समझ शायद मैं वहां से मैंने उनसे ली. और ये मैं
2002-2003 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब वहां से लेकर के 2014-15 तक हम लोग कभी कभी छुट हम लोग वर्कशॉप में मिलते रहे। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बेसिकली अब आते हैं हम लोग आज के अगर टॉपिक पे आते हैं, तो आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर थिएटर का इस्तेमाल। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर जो थिएटर का इस्तेमाल करेंगे बेसिकली, तो उसमें अगर हम देखें तो उससे पहले हमें ये थोड़ा सा उससे गुजरना होगा कि मैथमेटिक्स दरअसल क्या है, जो हम अक्सर तिवतिया जी की क्लास में भी अक्सर हम इन चीजों को सुनते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो मैथ्स एक्चुअली क्या है, मैथ्स क्यों है और मैथ्स कहाँ है, उन सब चीजों को सवाल मैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में रखूंगा ऐसे, क्योंकि हम टॉपिक हमारा मैथमेटिक्स में थिएटर पे होगा, दैट इज हाउ मैं, लेकिन इन चीजों को लेकर के हमें कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ है और मैथमेटिक्स कैसे है और मैथमेटिक्स क्यों है और मैथमेटिक्स क्या है, इन चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स की जो एक समझ है, वो मैथमेटिक्स का डर लगना, मैथमेटिक्स के बारे में एक ऐसी समझ बन जाना कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली समझा जा सकता है, नहीं भी समझा जा सकता, थोड़ा आसान भी है, थोड़ा कम आसान भी है। तो इसको अगर हम देखें तो एक कोटेशन है बेसिकली, मैथ्स इज नॉट लाइक राइडिंग ए बाइक वेयर यू नेवर फॉरगेट हाउ टू डू इट। साइकिल जब आप सीख लेते हैं तो साइकिल चलाने के बाद अगर आपने साइकिल चलाना भी छोड़ दिया और 5 साल बाद फिर सीखेंगे, चलाना चाहेंगे, तो आप चला लेंगे। 10 साल बाद भी जब चलाने को आपको कहा जाएगा तो चला लेंगे। लेकिन एक जैसे मैथमेटिक्स के प्रति अगर एक स्पोर्ट्समैन है, मान लीजिए स्पोर्ट्समैन मान लीजिए बहुत तेज धावक है और वो दौड़ता है और कुछ दिन उसने अपने उस रेस लगाने की उस प्रैक्टिस को उसने छोड़ दिया है और वो 5, 7, 10 साल के बाद फिर दोबारा से शुरू करता है, तो डेफिनेटली वो उस पोजीशन पे नहीं होगा जो उसने छोड़ी थी, जहां पर उसने भले ही कितने अचीवमेंट किए हों, लेकिन उसको दोबारा से तकरीबन दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस को दोबारा बनाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स यही है कहीं ना कहीं, द ओनली वे टू गेट फास्टर इज टू प्रैक्टिस ओनली। अगर हम प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, मैथमेटिक्स हमारा हमें भूल जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स को उस तरीके से भूल जाएंगे, तो मुझे ये उस कोटेशन के साथ इसकी बात को शुरू करना था। सर नीचे लेना था। इस मैथमेटिक्स रियली स्कैरी, तो इसके जो मैथमेटिक्स जो डरावना लगता है या मैथमेटिक्स से डर लगता है, इसके कारण क्या है, कुछ इससे अगर थोड़ा सा अगर इससे चलते हैं, तो बेसिकली सबसे पहला कारण जो मुझे नजर आया है वो है एब्स्ट्रक्शन होना, एब्स्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड द यूज ऑफ द परसेप्शंस टू नो एंड अंडरस्टैंड। एक तो एब्स्ट्रैक्ट होना, और एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद उसकी मानने और जानने की अवधारणा, ये जो होती है, पहले मैं मानूंगा कि मानो कि ये है, फिर उसके बाद जानूंगा किसी चीज को, तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को थोड़ा मुश्किल बनाता है, ये एक परसेप्शन हमारा बनता है। दूसरा है प्रोपेगेशन ऑफ सेल्फ प्रोमोलगेटेड कमेंट। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट एक्चुअली। जन्म से लेकर के क्लासरूम तक आते आते बच्चा यही सुनता रहता है कि मैथमेटिक्स मुश्किल है, मैथमेटिक्स मुश्किल है। तो उसमें बच्चे की एक धारणा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में बैठ जाती है कि हाँ हो सकता है मैथमेटिक्स मुश्किल है, और रही सही कई बार कसर जो है स्कूल में पूरी हो जाती है, जब बच्चे कहते हैं या बहुत सारे टीचर्स जो है ना, जिस तरीके से तिवतिया सर कई बार इस चीज को बड़े अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, मैं तो शायद उस तरह ना कर पाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन एक्चुअली उसको जिस तरीके से मैथमेटिक्स के टीचर भी कई बार उसको इतना डरावना बना देते हैं, तो वो भी एक कारण है कि मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, ऐसी एक अवधारणा बनती है। तीसरा जो है बेसिकली मोनोटोनस एंड कस्टमरी एंड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। एक्चुअली उसमें जो पारंपरिक तरीके से, किस तरीके से उन्हीं तरीकों को जो पुराने चले आ रहे हैं उन्हीं को लेकर के पढ़ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मैथमेटिक्स को एक्चुअली बच्चे तक नहीं पहुंच पाना वो होता है।
ये जो 3 कारण है बेसिकली, और भी कारण हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन मुझे अभी फिलहाल में इसके 3 कारण लगे जो कि मैथमेटिक्स को थोड़ा मुश्किल और थोड़ा डरावना बनाता है। अब हम जरा जॉन हर्ट की एक टिप्पणी है, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये असफलता बच्चों में क्यों आती है? असफलता पर बात करते हैं। उनकी जो एक्चुअली जो किताब है, बच्चे असफल क्यों होते हैं, इस किताब में वो कहते हैं इसलिए क्योंकि वे डरते हैं, ऊबते हैं और भ्रमित रहते हैं। अब उनको उन्होंने वो उसको डिफाइन भी करते हैं, डरते कैसे हैं। उनके मन में सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय होता है अपने आसपास के वयस्कों को नाराज और निराश करने का। इन वयस्कों की असीम आशाओं और अपेक्षाएं बच्चों के सिर पर बादलों की तरह मंडराती हैं। फादर की एक्सपेक्टेशन अलग है, मदर की अलग है, टीचर की अलग है। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग, ये तो मेरा लाल है, पता नहीं क्या करेगा, ये तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब ये बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया अपने आप में वैसा टर्म है कि बहुत बढ़िया क्या मतलब है, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इतना समझ में आता है, मुझसे जो है कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कोई लोग, है ना, मेरे से बड़े आदमी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना उसको समझ आने लगता है। तो इसका भी एक उसके ऊपर दबाव होता है जो कि इससे वो डरने लगता है। ये एक कारण है। दूसरा, बच्चे ऊबते कैसे हैं? क्योंकि जो कुछ उन्हें स्कूलों में करने को दिया जाता है या कहा जाता है, वो सब बेहद निरर्थक और नीरस होता है कई बार। बच्चों से रखे जाने वाली अपेक्षाएं नितांत सीमित होती हैं, जबकि बच्चों की उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो टैलेंट है, उनके गुण असीम होते हैं। लेकिन क्योंकि उनको इस तरीके से उनका जो पैटर्न है, जो स्कूल जिस तरह का बेहद उबाऊ करने वाला जो पैटर्न जो चला आ रहा है, जिस तरीके से बच्चों को दिया जा रहा है, करिकुलम जिस तरीके से आ रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बच्चे को लग रहा है कि कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पा रहा, अपने काम की चीजें नहीं हो पा रही, काम की मतलब उसको जो चीजें समझ आती हैं उस तरह की नहीं हो पा रही, कई बार उससे वो नीरस हो जाता है और वो उबाऊ लगता है। तीसरा है, बच्चे भ्रमित कैसे होते हैं? क्योंकि उनके सिर पर अर्थहीन शब्दों का प्रपात संवेग झरता रहता है। ये कल शायद शरतन तिब्बतिया सर ने भी कहा था कि किस तरह की शब्दावली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अनीता मैडम ने भी ये चीज को अपने उसमें लाया था कि किस तरह की शब्दावली हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो शब्दावली कहीं ना कहीं बच्चे से नहीं जुड़ रही है ना, ये शब्द बराबर उस सब का खंडन करते हैं जो बच्चे को पहले से बताया गया था। और तो और बच्चे जो कुछ स्वयं अपने अनुभव से जानते हैं, उससे भी इस शब्द प्रपात का कोई संबंध नहीं होता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा तो मिट्टी का धौंधा है, वो कितना जानता है, कुछ नहीं, हम तो उसे जैसा शेप देना चाहें वो शेप दे सकते हैं। ये थ्योरी पढ़ले दर्जे से खारिज है। कोई बच्चा, मतलब मेरा मानना है और एजुकेशनिस्ट का मानना है बेसिकली, कि बच्चा अपना एक एक्सपीरियंस लेके आता है क्लासरूम के अंदर। उस क्लासरूम के साथ आपका एक्सपीरियंस, मतलब टीचर का, मतलब फैसिलिटेटर का जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ मिलकर के जब चीजें होती हैं तब बन पाती हैं उसकी एक समझ, और तभी वो उसे आगे बढ़ा पाता है। नाउ अब हम बात करते हैं इसको कि हाउ कैन बी ब्रेक मोनोटोनी ऑफ द क्लास। इस मोनोटोनी की जो हम बात करते आए अभी तक कि किस तरीके से बच्चा एक ही तरीके से रटी पटी उसको पढ़ रहा है, तो कैसे वो कर पा रहा है, सो दैट आई फील इंटरेस्टिंग, आई लाइक, मुझे पसंद आए वो चीज, मैं मजे मजे कर पाऊं उसमें, और मैं फ्रीनेस महसूस कर पाऊं। और फ्रीनेस वो अपनी बात करने के लिए, अपने चलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपने आप को एलोबरेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात को कह ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मेरा जो टीचर के साथ जो मेरा एक संबंध है, टीचर के साथ मेरा जो परसेप्शन बन गया है, वो ये कि मैं अपनी बात को ठीक से कन्वे नहीं कर पाता हूँ, और मेरी बात को मेरे द्वारा कहा जाता है और न ही टीचर द्वारा सुना जाता है। तो समथिंग आई ओन इन द क्लास, वो जो भाव है उसको कहीं ना कहीं मैं वहां कह पाऊं उस चीज को लेकर के। तो मोनिटोनी हम इस तरीके से देखते हैं उसको। अब आती है एक्टिविटीज। ये 2 शब्द हैं एक्चुअली, अगर हम यहां से चलें कि एक्टिविटीज क्या है, व्हाट इट इज एवरी एक्शन कॉल्ड एक्टिविटी, हाउ इट हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक्टिविटी कोई भी, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्लासरूम के अंदर गया, बच्चों हमें बताया गया कि एक्टिविटी करना है, ठीक है सब लोग खड़े हो जाओ, ओके, इसको ऐसे एक्शन करना, ऐसे करना हर एक बच्चे को,
ये एक्शन करना है ऐसे, और ये ऐसे करके ऊपर नीचे, हाथ नीचे ऊपर नीचे करने हैं, और ये लगातार करते रहना है 2 मिनट तक, क्योंकि एक एक्टिविटी हो रही है ना। ओके फाइन, इट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी डेफिनेटली, बट वाकई एक्टिविटी है। एक्टिविटी का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब तक उसका एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं हाथों को अगर मैं किसी एक मान लीजिए मशीन का कोई पुर्जे का चलाने की बात कर रहा हूं, तो मैं शायद ऐसे करके करूंगा, ये एक्शन करूंगा, एक्शन करके कुछ और चीजें भी कर सकता हूँ डेफिनेटली, या मैं एक एक्शन करके यूं करके सुई पुरेने का एक्शन कर रहा हूँ। तो सो दैट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं उसका एक ऑब्जेक्टिव बना हुआ है एक्टिविटी का, तभी वो एक्टिविटी कहलाती है। अदरवाइज वो आपके हाथ पैरों की एक्सरसाइज होती है, नॉट मोर देन दैट एक्चुअली। एंड नाउ कम टू दी व्हाट इज थिएटर, और थिएटर एक्टिविटी से कैसे अलग है, इसको लेकर के अगर हम बात करें तो व्हाट इज थिएटर and what is not theater? Is this also the activity? अगर हम देखें कि एक्टिविटी के अंदर एक पर्पस भी है, एक्टिविटी के अंदर पर्पस है और एक्टिविटी हो रही है बाकायदा। आपने पेन और पेपर से, जैसा हमने एक्टिविटी गुजराल सर ने बड़ा खूबसूरती से उसमें एक्चुअली अपने प्रेजेंटेशन में दिखाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी एक्चुअली। अब आप अगर देखें वो जो है, लेकिन उसके अंदर क्या थिएटर है? एक्टिविटीज बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। थिएटर और एक्टिविटीज में थोड़ा फर्क कहाँ है? क्योंकि ऑल द थिएटर परफॉर्म आर द एक्टिविटीज, सारी की सारी जो जितने भी थिएटर होते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज होते हैं, मगर ऑल द एक्टिविटीज आर नॉट द थिएटर एज सच। हर एक्टिविटी थिएटर नहीं कहलाएगी, लेकिन हर थिएटर एक्टिविटी में आएगा डेफिनेटली, उसके अंदर जिस तरह की चीजें होती हैं। अब थिएटर में क्या है, थिएटर में किस तरह से भावों का संवेग होता है, उसको लेकर के अगर हम बात करते हैं। ये सुन ले, मैं क्या सुनता हूँ, ये वो बंद करना पहले उसको एफएम को, या फिर दिया यार, मैं बंद करूँगा चलता रहेगा। प्लीज म्यूट कर दो सभी को, मुझे लगता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए सर, आप कर दीजिए। या then theater is a performing art using body, using voice, using emotions, using space and using connections among others. थिएटर के अंदर आपको वॉइस भी लानी है, वॉइस आपको बॉडी का एक इस्तेमाल भी लाना है, कहीं ना कहीं वो जेस्चर भी लाने हैं, फीलिंग्स भी लानी है। वो सारा जब आप ले आते हैं किसी भी एक्शन में, वो आपका थिएटर कहलाता है। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली अगर किसी भी एक्टिविटी में इस तरह की फीलिंग्स हम ले आते हैं, वो हमेशा थिएटर कहलाएगा। इसका इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल अगर हम देखें कहां से होता है, तो अरिस्टोटल के दौर में अगर हम जाते हैं, एक बार को अगर हम देखते हैं, जरा अगली स्लाइड लीजिएगा सुंदर जी। या उससे पहले अगर हम देख लेते हैं कि यूजिंग थिएटर एज ए मीन्स टू टीच a mathematical subject makes the class more interesting. Manju ma'am, requesting you to mute yourself. Manju Sharma ma'am. मैम मेरा म्यूट है। Ma'am, it's unmuted. Please mute नो it. मैम, नो मैम, इट्स मैं म्यूट। Okay. अब थिएटर का जो इस्तेमाल है वो क्लासरूम के अंदर, और मैथमेटिक्स की क्लास हम इसलिए आज हमने लिया है खासतौर से, और इतना ये भी था कि मैथमेटिक्स में अगर हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में एक कोई मुझे बार-बार अनम्यूट कर रहा है। अगेन मुझे किसी ने अनम्यूट कर दिया है। अब मैं फिर जूम पर कोई किसी को अनम्यूट नहीं कर सकता मैम। रोहित सर, मैं आई एम टेलिंग दिस थिंग, मैंने अभी अंजू मैम के कहने से दोबारा से चेक किया और अगेन मैंने कर लिया। अब दोबारा से मैं प्लीज कंटिन्यू अशोक सर। या तो उसका जो थिएटर का जो बेसिकली इस्तेमाल हम क्लासरूम के अंदर करते हैं, तो उसमें इंटरेस्टिंगली उसको बच्चों को एनेबल कर पाना कि वो हर चीज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में वो हर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बड़े मजेदारी के साथ उन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स की क्लास में जा रही है। लेकिन ये कैसे हो पाएगा, इन चीजों को लेकर के
जरा हम अभी देखते हैं। और लाइव एंड वाइब्रेंट रिलेशनशिप जो है ना, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, ये मैथमेटिक्स के लिए नहीं, ये एसएसटी के लिए भी उतनी ही एक्चुअली लागू है, हिंदी के लिए, लैंग्वेज के लिए, हर लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश, हिंदी, सब के लिए, है ना। तो और बेसिकली इस चीज को लेकर के कि थिएटर हम इस्तेमाल कर पाए, कैसे थिएटर को इस्तेमाल कर पाए, और क्या वो हमेशा इस्तेमाल करना है, क्या वो हम पूरा करिकुलम ही पढ़ाना है, इस पर हम अभी आ रहे हैं। या इसको अगर हम देखें, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, ड्रामा एजुकेशन जो है, ड्रामा इन एजुकेशन, सबसे पहली बार जो हमें देखने को मिलता है, हम देखें तो यूज ऑफ ड्रामा हैज बीन यूज्ड इन द, ऑफ कोर्स वेरी ओल्ड एक्चुअली हिस्ट्री देयर, एरिस्टोटल के टाइम पर, जब वहां पर वो ये चीज कहते हैं कि इसमें बच्चे का इमोशंस रिलीज होते हैं, इमोशंस को जो जिन भावों को लेके आया बच्चा, उसको एक बार रिलीज हो जाता है, तो वो उनके साथ वहां से वो फारिग होकर के फिर वो पूरी तरह से उन मोमेंट्स को जी पाता है जिन मोमेंट्स में स्कूल में वो आया है। अभी जो हैप्पीनेस में बेसिकली जो अब तिवतिया सर बैठे हैं, मैं थोड़ा उनके सामने कह रहा हूँ, तो जो हैप्पीनेस में, खासतौर से हैप्पीनेस में क्या है, हैप्पीनेस में यही है, अगर आप देखें कि स्कूल घर में जो हुआ है, ओके फाइन फाइन, अभी मैं वर्तमान के प्रति सजग होना, खासतौर से उन इमोशंस को, जो इमोशंस अभी थोड़ी देर पहले आपके पास थे, ओके फाइन, उनको रखें हम, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर वर्तमान के प्रति सजग होकर के अपने स्कूल के माहौल के प्रति उस अनुकूलता को थोड़ा एडॉप्ट करें। तो वो ये चीज अरिस्टोटल 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ये चीजें हम वहां पे देख पा रहे थे, और वो वहां पर करने पे जोर दे रहे थे, डूइंग रादर देन द मेमोराइजिंग, emphasizing on the doing rather than the memorizing actually। और इसी तरह की जो ड्रामा को यूज करना, एक्शन को यूज करना, पोस्चर और इमोशंस को यूज करना, कई बार हम अपने गुरुकुल पद्धति में भी, जिस तरह की हम जो पढ़ाई करते थे कई बार कि पेड़ के नीचे खुले में हम जो की एजुकेशन चल रही है, वहां पे एक दूसरे के साथ रिलेशन बने हुए हैं, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, वहां पे एम्पैथी भी थी, वहां कोलैबोरेशन भी था, वहां क्रिटिकल थिंकिंग भी था, क्रिएटिव थी, तो वो तमाम तरह की जो चीजें थी, मेरे ख्याल है वो साइन भी हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, जो कि बेसिकली जिसकी तरफ इशारा गीजू भाई ने कुछ हद तक भी किया है। अगर हम दिवास्वप्न उनकी किताब पढ़ते हैं तो शायद उसमें भी इसके इंडिकेशंस मिलते हैं, जो वो एक्टिविटी को प्रमोट करने की, और एक्टिविटी पर उन्होंने पूरी एक जिम्मेदारी ली और उन्हें बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया। इसी में एक और किताब है, बेसिकली अगर आपको पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़िएगा, रमेश दबे की किताब है, ये मैं इस तरह नहीं पढ़ूंगी, ये तो बहुत ही पता नहीं ये सीधे जा रहा है उल्टी जा रही है, मैं इस तरह नहीं पढ़ूंगी, इट्स अच्छी किताब है। रमेश दबे दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, प्रोफेसर रहे, एजुकेशनिस्ट रहे हैं। वो लड़की जो है साफ कहती है कि नहीं, ये जो आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है, मैं इस तरह नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि आपने जो ट्रेडिशनल तरीके बना रखे हैं, अपनी सुविधा से बना रखे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग किताब। तो अब आते हैं थिएटर इन क्लासरूम। अभी हमने थोड़ा ये बात की कि अभी थिएटर में क्या क्या चीजें आएंगी, इस पर भी हम बात करेंगे कि थिएटर करता क्या क्या है। उससे पहले हम कर लेते हैं अभी हम बात कर लेते हैं कि थिएटर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लासरूम। एक तो सबसे ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल है हम सब के लिए, जो हम थिएटर मैथमेटिक्स में थिएटर में इस्तेमाल करने के लिए हम टीचर्स हैं, कि थिएटर एक ऐसा जरिया है जो बच्चे के साथ कनेक्ट करता है। कनेक्शन में ये ज्यादा काम आता है। ऑब्वियसली टॉपिक भी, आपको टॉपिक भी एलोबरेट करेगा, टॉपिक भी ये आपको आगे लेके जाएगा, टॉपिक के साथ आप एक रेजेम्बलेंस बनाएंगे, डेफिनेटली टॉपिक के थ्रू जाएंगे हम उसमें। लेकिन कई बार ये एनर्जाइजर की तरह भी इस्तेमाल करेगा, कई बार ये आगे जाकर के हम इसको बच्चे की फीलिंग्स के साथ एम्पैथेटिकली, कोलैबोरेटिवली, तमाम तरह की चीजें हम इसमें कर पाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो बेसिकली मैंने थोड़े कुछ चीजें रखी हैं इसमें। मसलन थिएटर गेम्स है। थिएटर गेम्स बड़े मजेदार गेम्स होते हैं बेसिकली, अगर आप बच्चों के साथ कराते हैं और मैथमेटिक्स की क्लास में कराते हैं। इससे पहले मैं इस चीज को लूं, उससे पहले मैं एक और चीज कह रहा हूं कि बेसिकली अगर हम ये चीज देखें कि मैथमेटिक्स की क्लास में थिएटर ही क्यों, इसको अगर हम थोड़ा सा एनकाउंटर कर लेते हैं सवाल को, मुझे लगता है कि बच्चे के साथ जो अभी तक हम बात कर चुके हैं इसको लेकर के,
कि कहीं ना कहीं बच्चा अगर आपके साथ एक इजीनेस महसूस कर पा रहा है, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को बताएंगे तो वो आपका एक रिलेशन बन गया बच्चे के साथ। कहीं ना कहीं वो हायरार्की ब्रेक अगर हो पा रही है, हायरार्की ब्रेक मींस आप वहां टीचर हैं, बच्चा वहां पे बच्चा है, तो एक फैसिलिटेटर और बच्चे के बीच में कहीं मेरे ख्याल है जो स्पेस जो जो एक हायरार्किकल एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर कम नहीं होगा, अगर बढ़ेगा, अगर उस डिस्टेंस से बच्चा आपके पास आने से कतरा रहा है, वो डिस्टेंस नहीं, वो पार नहीं कर पाएगा। पार उसको कराने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरा मानना है, हम सबका मानना भी हो सकता है, आई थिंक डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी टीचर की है, एब्सोल्युटली टीचर की है। क्योंकि टीचर अपनी तरफ से अगर इनिशिएट नहीं करेगा बच्चे को अपने पास बुलाने की, बच्चे की हिम्मत नहीं है कि बच्चा अपनी तरह से अपने आप वहां तक आ पाए। अगर एक दो बार आने की कोशिश भी की तो भी फिर वो बच्चा अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारा नहीं मिल पाता है वहां से, तो उस सूरत में फिर वो बच्चा भी निराश हो जाता है और फिर तो वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसको ईज करना, क्लास के अंदर वो माहौल बनाना जब हम मैथ्स पेडागोजिकल चीजों को ले पाएंगे, मैथ्स की बातें कर पाएंगे, मैं एकेडमिक ऐसा डिस्कोर्स बन पाएगा जहां पर कि हम इजीली बात कर पाए बच्चों के साथ। तो वो एक कहीं ना कहीं इसका काम ये थिएटर करता है। ओबियसली जब हम बात करते हैं कि थिएटर गेम्स की, तो थिएटर गेम्स में तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं, तमाम तरह के गेम्स हैं। अगर आप मतलब बेसिकली अगर चाहें तो मैं बहुत सारे गेम्स दे सकता हूँ उसमें। अगर आप YouTube पे भी डालेंगे थिएटर गेम्स और एनर्जाइजर्स, आपको तमाम लिस्ट मिल जाएगी और बड़ा मजा आएगा एक्चुअली। तो ये तमाम तरह की चीजें आप कर सकते हैं उसमें से, और करके क्लास रूम के क्लास चलने से पहले, क्लास चलने के बाद, या आप एक दिन नहीं करना चाहते, हफ्ते में 2 दिन करना चाहते हैं, या कैसे आपने बनाते हैं, इट इज माय शेड्यूल, उस हिसाब से हम इसमें चल सकते हैं। थोड़ा नीचे कीजिएगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे ऊपर लाइएगा, या एक सेकंड और नीचे, थोड़ा और नीचे, या बस। नाउ कम टू द, मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन में मुझे थिएटर कराना है। सपोज मैंने 4 बच्चों को लिया, 4 बच्चों को लेकर के मैंने एक जगह इकट्ठा किया सबको, मान लीजिए बैक टू बैक मिलकर के 4 दो ऐसे बैक टू बैक ऐसे हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं। तो इस तरीके से 4 बच्चे मैंने इकट्ठे हैं, 4 क्वाड्रेंट की तरह एक तरह से सर्कल बना हुआ है ना, और वो एक दूसरे को इस तरीके से देखते हैं। अब मैंने मान लीजिए कहा कि आप में से ये 4 बच्चे हैं और ये एक सर्कल बना हुआ है, एक तरह से सर्कल का फॉर्मेशन हमने बना लिया है। अब मान लीजिए इसमें से ये एक बच्चे को मैंने बाहर कर दिया, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें से एक को मैंने बाहर कर दिया और फिर मैंने दूसरे को बाहर कर दिया, इन 2 को बाहर निकाल दिया और 2 को वहीं रहने दिया। अब जो बाहर निकाला गया है वो कितने पार्ट निकाले गए, बच्चों से पूछा हमने, बच्चे देखेंगे, बच्चे ही जवाब देंगे इसको, और उसको फिर एक्शन के साथ और फिर अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, और वो वहां पर वो अपने आप को बताते हैं कि मैं 1 बाहर आ गई, मैं 1 बाहर आ गई, हम 2 बाहर आ गए। तो 2 बच्चे बाहर गए आउट ऑफ 4, तो 2/4 का कॉन्सेप्ट वहां पे निकल के आया। अब मान लीजिए हमने कहा 2/4 यहाँ है, 2/4 यहाँ पे है, तो क्या ये दोनों सेम है? इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया। मान लीजिए हमने सबको फिर वापस कर दिया वहीं पे, अब वहां से एक निकाला मैंने बाहर, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आया है जो वहां से, और हमने इसको शुरुआत में भी कह दिया कि मान लिया हमने ये चारों चारों हमारे बराबर है ना, ये हम मान के चल रहे हैं, हमने पहले से बच्चों को बता दिया। तो यहाँ से एक बाहर निकल के गया है 1/4। अब मैंने यहाँ पे कंपैरिजन भी सिखाया बच्चों को, बच्चे जान सकते हैं इसको कि 1/4 इज मोर, और यहाँ पे जो बचा पार्ट है, जो कि कितने पार्ट बचे हैं, 3 पार्ट बचे हैं, तो 3/4, तो 3/4 एंड 1/4 विच इज मोर, विच इज लेस। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है, या कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कैसे हम उसको दिखाएं, कैसे इस चीज को लेकर के फ्रैक्शन को बड़ा इंटरेस्टिंगली बता सकते हैं। मतलब बेसिकली केक के सवाल को लेकर के कई बार हम केक को लेकर के भी हम कर देते हैं तमाम तरह की चीजें, या हम कोई भी चीजें रेक्टेंगल लेकर के, कोई भी रेक्टेंगल हमने लिया मान लीजिए, या हमने स्क्वायर लिया, उसको लेकर के अगर हमने इक्वल पार्ट्स कर दिए, उसको लेकर के हम फ्रैक्शन को इजीली
एक्टिविटी के थ्रू तो दिखा ही सकते हैं, बट बॉडी के थ्रू भी हम उसको कन्विंस कर सकते हैं। अगला नंबर सेंस में गेम विद सर्टेन कंडीशंस। मान लीजिए आपने एक गेम तो बड़ा इंटरेस्टिंगली खेला होगा शायद, ये एनर्जाइजर में भी आता है इस्तेमाल कई बार। जब नंबर सेंस के लिए हम करते हैं, मान लीजिए बच्चों को गिनती हमने राउंड में खड़ा कर दिया और उसके बाद हम काउंटिंग करा रहे हैं उनसे, और काउंटिंग कराते समय हमने किया कि 3 और 3 के मल्टीपल्स पे क्लैप करेंगे, और वो क्लैप करना शुरू हो गया 3 और 3 के मल्टीपल्स पर। उसके बाद हमने जब हमने 1 2 3 राउंड ये कराए, उसके बाद हमने कहा कि ओके फाइन, अब हम 5 और 5 के मल्टीपल पर हा ऐसे हम एक आवाज देंगे, है ना, तो उससे शुरू हो गया। तो इस तरीके से मेरे ख्याल है इस तरह के एक नंबर सेंस को लेकर के कुछ कंडीशंस हम इसमें बढ़ा सकते हैं, इन चीजों को लेकर के भी हम कर सकते हैं। एक नंबर गेम और भी होता है, अगर दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम ये बात करते हैं कि जिन जिन बच्चों के, मान लीजिए बच्चों के नाम है राजेश, अतुल, मेहताब, तो राजेश, अतुल, मेहताब या सरिता, तो बेसिकली इनके नाम किस अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं। मान लीजिए मैंने पहले उनसे कहा कि आपके नाम जिस अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं उसका कौन सा नंबर है, आपका डिजिट क्या है, नंबर क्या है, आप बताइएगा, क्योंकि बेसिकली हम बात कर रहे हैं ABCD से लेकर के A से लेकर के Z तक, नंबर्स हमने उनको दे दिए 1 से लेकर के 24 तक। अब बेसिकली 26 तक, 1 से लेकर 26 तक जो हमारे A से लेकर Z तक जो नंबर गए हैं, अब जैसे A का है A1 हुआ, या हमारा D हुआ 4 हुआ, या हमारा J हुआ 10 हुआ, तो हर एक कोई अपना अपना नंबर याद रखेगा। अब हमने उनको सबको मिक्स कर दिया पूरी क्लास में। अब हमने कहा कि 33 बनाना है, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, या अकेला भी बना सकता है, व्हाटएवर अगर बन सकता है तो बच्चे इससे बड़ा इंटरेस्टिंगली एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, एक दूसरे के साथ देखेंगे कि कौन सा किसका नंबर किसके साथ मिलेगा। 28 जिसका 23 जिसका है उसमें कितना बने, कितना मिले कि 33 बने। मान लीजिए 33 बनाना है तो 23 में कितना बनेगा, तो 10 बनेगा। अभी मान लीजिए 12 में कितना बनेगा कि 33 होगा। तो इस चीज को लेकर के बच्चे अपने आप उसमें थोड़ा क्रिएटिवली, इनोवेटिवली थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे। इस तरह की चीजें भी हम एक्चुअली नंबर सेंस के साथ हम कर सकते हैं। बेसिकली एल्जेब्रा बेसिकली अगर हम देखें तो फॉर्मिंग इक्वेशंस विद एंड प्लेज विद द रियल लाइफ सिचुएशंस। डेफिनेटली एल्जेब्रा एक ऐसा, एल्जेब्रा भी एब्स्ट्रक्शन का एक खान है, और कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो है एक केले का मूल्य 5 रुपए है तो बच्चा ही महसूस करता है कि एक केले का मूल्य 5 रुपए है तो 5 रुपए है, एक केले का मूल्य मैं x क्यों मानूं। जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो बेसिकली मानना एब्स्ट्रक्शन, ये एब्स्ट्रक्शन की एक और कड़ी है एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में एजम्पशन करना, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बच्चा, मान लीजिए कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है मुझे, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे मैं बच्चों को लूं, और बच्चों को रिप्रेजेंट कराने के लिए कैसे मैं सभी बच्चों के बीच में उनको किसी को x बनाया, किसी को y बनाया, एक मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 75 रुपए है मान लीजिए। तो बेसिकली एक मेज, मान लीजिए एक बच्चा मेज बना, एक जो कुर्सी बना, तो 3 कुर्सियां, एक मेज, दोनों बने, मिले और दोनों ज्वाइन हुए, और फिर मान लीजिए 75 या 73 व्हाटएवर या कोई और फिगर ये होता है। तो इसको लेकर के ये एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये ऑल द टाइम एक्चुअली कैसे दिखाएंगे, ये आप प्ले कार्ड के थ्रू दिखा सकते हैं कि एक हमने लिया 1 इंटू, मान लीजिए कासिम जो है कुर्सी बना है, 1 कासिम 1 दिखा दिया उसने। 3 चेयर कोई राधा बनी है मान लीजिए, 3 चेयर, 3 उसने ले लिया और वो बन गया, और दोनों मिल गए आपस में। तो कितना सम होता है हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो और इसका मतलब ये थोड़ा बॉडी मूवमेंट से हम इसको इजीली दिखा सकते हैं, और वो उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। और इसके साथ बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशंस में हम कई बार जब हम सामान खरीदने जाते होते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि इतनी चीजें इतने की इतनी आई, कोई भी मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिया है ना, और वो उस एग्जाम्पल को फिर मैंने कहीं ना कहीं
उसको मिक्स किया अपने मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू, जो कि थिएटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो उसमें हमने उन कंडीशंस को बनाया, कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन ली और उसको लेकर के मैंने एक रोल प्ले बना लिया। मैंने कंडीशन समझाई बच्चे को कि किस तरीके से आपने आज वहां दुकानदार पे गए, दुकानदार से आपने ये तमाम चीजें लिस्ट की ली आपने, और उसके साथ आपने इन चीजों में आपने ये खरीद के लाए, इतना पैसा बचा, इतना पैसा आपने दे दिया। इन चीजों को लेकर के आपने उन चीजों को, उन मूवमेंट्स को लेकर के बच्चों को मूवमेंट्स को जिंदा दिली के साथ खेलना कहीं ना कहीं हमें सिखाया उस सिचुएशन के थ्रू। तो इसमें हुआ क्या कि एक तो क्लासरूम में वो उस उन सारी सराउंडिंग से गुजर के गया जो डे टू डे बेसिस पर उनके साथ घरों में वो महसूस करते हैं, और दूसरा फिर उसको महसूस कर पाया एलजेब्रा के साथ कि एलजेब्रा में किस तरीके से वो रियल लाइफ सिचुएशन भी आ सकती है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। इसके तमाम तरीके और भी हो सकते हैं डेफिनेटली, अभी मुझे जो लगा है ज्योमेट्री में फॉर्मिंग शेप्स एंड क्लैरिटी बाय यूजिंग देयर बॉडी। मान लीजिए क्लासरूम जो है पूरी क्लास में घूम रहा, पूरे रूम में घूम रही है। मान लीजिए मैंने क्लास को पूरी क्लास में मूव करने के लिए कहा, और मैंने कहा कि कोई भी 4 बच्चे इकट्ठे होंगे, 4 जो है कोई भी जो है एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, तो 4 बच्चे ज्वाइन होंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अब मैंने कहा कि नहीं, अब आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन ट्रायंगल बनाना है, लेकिन 4 बच्चों से बनाना है। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, 4 बच्चों से कैसे बनेगा, लेकिन वो बच्चे इजीली बना सकते हैं वो भी, कि 3 बच्चे खड़े हुए और चौथा जो है आकर के उसने उसको बहिष्कोण बनाने के लिए उसे साइड बना करके उसने अपनी लाइन। तो बेसिकली ये अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, इतनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, इसको लेकर के वो पूरी तरह से उसके प्रति सचेत है, उस शेप के प्रति सचेत है। मान लीजिए मैंने कहा कि नहीं, अब आपको मान लीजिए पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, या आपको एक सर्कल बनाना है। ओके फाइन, आपको एक सर्कल बनाना है और कितने भी बच्चे हो सकते हैं, तो उन्होंने सर्कल बनाया। मान लीजिए 2 सर्कल 3 सर्कल क्लास में बन गए। अब मैंने कहा एक सेंटर भी बनेगा, तो सेंटर बन गया। तो अब बच्चे दिखा रहे हैं कि सेंटर किस तरीके से पूरी तरह से पूरी क्लास को जो है टच करता है, सारी पेरीफेरी पे टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, तो बच्चों से इन सवालों को लेकर के कि डायमीटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं वो सवाल कर सकते हैं। और इसमें हम टेंजेंट के थ्रू कॉर्ड क्या होगी, इन सारी चीजों को लेकर के हम इजीली इसको शो कर सकते हैं। रोल प्ले ऑन द बेसिकली ऑन टॉपिक्स आफ्टर मेकिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बेसिकली ये होता है कि जब आपने कोई भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी थी किसी भी टॉपिक पर, मान लीजिए उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद मैंने बच्चों से इनवाइट किया कि आप इसको अगर खेलेंगे, इसको अगर एक्शन में लाना चाहते हैं, आप एक बॉडी का इस्तेमाल करके अपने थिएट्रिकल डिवाइस के तौर पर आप इसे कैसे यूज करेंगे, थिएटर कैसे दिखा पाएंगे इसमें। तो बच्चों के बाद बड़े अच्छे से दिमाग चलते हैं उनके, बड़े मजेदारी के साथ वो दिखाएंगे। हो सकता है कुछ कम करके दिखा रहे हो, तो आपकी तरफ से जो व्यूज आएंगे उससे आप उसको आगे और प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, पहले मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देनी है, उसके बाद आगे जाना है। इसमें बेसिकली क्लैरिटी ऑफ इंटीजर्स, खासतौर से प्लस माइनस, एक बच्चा है वो अपने आप को प्लस में आगे जा रहा है, इसने स्टेप्स पीछे जा रहा है, वो जो है बेसिकली नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर के इंटीजर्स का आइडिया देना, या इंटरेस्ट के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमने एक रोल प्ले नॉर्मली करते हैं कि इंटरेस्ट को बच्चे को समझाना, बच्चे को इंटरेस्ट का आइडिया देना कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट एक्चुअली किस तरीके से होता है। तो उसको लेकर के बच्चों ने समझा, बच्चों से कहा कि अच्छा आपने इस पे एक रोल प्ले बनाओ, तो वो बच्चे रोल प्ले बनाएंगे, तमाम चीजें करेंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, क्या अमाउंट होता है, अमाउंट कैसे निकलता है, कौन कितना देगा पैसा, उसको लेकर के ग्रेजुअली उस चीज के ऊपर हम वो कुछ उसको कर पाएंगे। इसमें एक चीज मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट, इसके लिए किसी भी रोल प्ले की स्क्रिप्ट अगर मैं इजाद अपनी क्लास के लिए खुद करता हूँ, इट वुड सो नाइस ऑफ दैट एक्चुअली, क्योंकि आपको क्लास की क्या जरूरत है ये ज्यादा पता होता है।
अगर मैं ओपनली अगर बच्चे को इनवाइट करता हूँ, बच्चों को साथ लेकर के मैं भी उनके साथ हूँ डेफिनेटली एज ए फैसिलिटेटर, तो डेफिनेटली वो काम इतना मुश्किल होता नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई और उसके बाद हमने एक मोमेंट रखा कि ठीक है एक दिन जो है हम इसी चीज के लिए रखते हैं, और फिर वो बच्चे उसमें तमाम तरह के आइडिया लेके आएंगे जो कि खास तौर से हम हैप्पीनेस में महसूस करते हैं बच्चे कि इस तरह के मोमेंट्स को लेकर के बड़े जिंदा दिली के साथ वो एंजॉय करते हैं। वो अगर सब्जेक्ट में भी हो पा रहा है, शायद हैप्पीनेस का यही पर्पस था, ईएमसी का यही पर्पस है। जब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की हम बात करते हैं तो यही पर्पस है उसका कि बच्चे को उस तरह का एक जो दिमाग उसका प्री ऑक्यूपाइड है उसको हम कैसे उसको निकाल पाए और उसको चीजों को जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट का टॉपिक है, उससे वो कैसे वो अपने को जोड़ पाए। इसमें प्रगति में बहुत सारे रोल प्ले हमने बनाए थे। तिवारी सर सुन पा रहे हैं क्या? या सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा या डेफिनेटली अभी 6:15 हो चुके हैं। या नेक्स्ट दीजिएगा। इट वाज माय एक्चुअली जरूरी था, मुझे लग रहा था ऐसा एक्चुअली। अगला जरा थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। Using theater in class always helpful in the developing self-confidence. Self-confidence basically यही चीज कि अपने आप को कैसे वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर पाएगा, कैसे वो अपने व्यूज को, अपनी एबिलिटीज को सबके सामने दिखा पाएगा। ये कॉन्फिडेंस आना, और वो सिर्फ क्लास के लिए नहीं, वो ऑल ओवर द लाइफ के लिए भी उस बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस लाना, ये थिएटर कर पाता है, और ये क्लासरूम के अंदर हम इसे कर सकते हैं डेवलप। नेक्स्ट दैट इज इमेजिनेशन। नेक्स्ट इमेजिनेशन, आइंस्टीन ने एक्चुअली ये कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो इमेजिनेशन में खासतौर से अगर वो बच्चा इमेजिनेशन की उस पावर को पहचान पा रहा है कि कैसे वो आउट ऑफ बॉक्स सोच पाए, कैसे वो चीजों को नए तरीके से ले पाए, नई तरीके निकाल पाए, है ना, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर मैथमेटिक्स की उस धारणा को वो कर पा रहा है कि आंखें बंद करके बच्चे से कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक रे आ रही है, एक और रे आ रही है, एक तीसरी और रे आ रही है। जरा आंखें बंद करके थोड़ा महसूस कीजिए कि 3 रे आपस में एक दूसरे को काटती हैं, और काटने के बाद फिर फिगर क्या बनेगा? तो क्या उसमें कोई 3 से कटी हमारे कोई ट्रायंगल बन रहा है? तो सो दैट एक इमेजिनेशन जो है बच्चे को अगर हम करा पा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का एक जरिया हम इसके जरिए कर सकते हैं। या नेक्स्ट, दैट्स द एम्पैथी, एक्टिंग इन रोल इन डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर के अगर हम रोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमेशा एम्पैथी जो है हम बच्चों को एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, एक दूसरे की स्थिति को हम समझ पाते हैं, और इससे डिफरेंट कल्चर प्रमोट होती है। कंपैशन एंड डेवलप टॉलरेंस अदर्स फीलिंग एंड व्यू पॉइंट्स ऑल्सो, उसको रिस्पेक्ट देना, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट देना, और टॉलरेंस भी बच्चे को आ पाती है कि नहीं वो स्थिति समझ पा रहा है कि किसी ने उसको जानबूझ के कुछ नहीं किया है, डेफिनेटली ये कोई बात हो गई है तो कोई वजह है, तो उसको पहचान पाना। शायद एम्पैथी जब एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और एक्टिविटी में मिक्स होंगे, और वो एक्टिविटी अगर थिएट्रिकल एक्टिविटी है जिसमें आप गेस्चर का, बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एम्पैथी का वो पार्ट आ पाएगा। या नेक्स्ट, yeah, collaboration is the most important part of this whole activity, क्योंकि it combines the new ideas and ability of the participants. इसमें cooperative learning, इसमें discussion, कोई सिचुएशन मान लीजिए, कोई भी रोल प्ले देकर दे दिया आपने, कोई भी सिचुएशन आपने खेलने के लिए दी, कोई भी सिचुएशन खेलने के लिए दी, उस सिचुएशन को खेलने से पहले वो डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, फिर वो नेगोशिएट करेंगे कि ये ठीक है, ये थोड़ा कम ठीक है, इसको हम ले आए, फिर उसको रिहर्स करेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये टुगेदरनेस, ये कोलैबोरेशन जो है, मेरे ख्याल है ये किसी भी इस तरह के एक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी पार्ट है। या नेक्स्ट,
जैसे कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली जब अब बच्चों को कोई चीज इस तरह की चीजें दी जाती हैं करने के लिए, उनको कंसंट्रेशन ठीक से फोकस कर पाते हैं और कांस्टेंट फोकस हो पाता है माइंड का, और बॉडी पर काम कर पाते हैं, वॉइस को ठीक से मॉड्यूलेट कर पाते हैं कि मैं जोर से बोल रहा हूँ, धीमे बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ तो कैसे बोलना, वो बच्चा सीख पाता है। इन सब चीजों को लेकर के कर पाते हैं स्कूल सब्जेक्ट के साथ। कम्युनिकेशन स्किल ऑब्वियसली एक जब वो कोई भी रोल प्ले करते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं और थिएट्रिकल कोई भी एक्शन हो रहा है क्लासरूम के अंदर, तो वो कम्युनिकेशन के बिना तो होगा ही नहीं। हो सकता है कम्युनिकेशन, एक बार कोई एक्शन आपने ऐसा दे दिया कि आपको बोलना नहीं है और आपको ये एक्शन करना है ना, ओके फाइन, तो भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बॉडी के थ्रू कर रहा है, अपने किसी पार्ट के थ्रू कर रहा है। तो वो जो कम्युनिकेट कर रहा है वो बच्चा वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको किस तरीके से पहुंचा पा रहा है, ये उसको सीखना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द वॉइस प्रोजेक्शन, आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, कैसे एक शब्द को लेकर के, एक वाक्य को लेकर के क्या उसका सब टेक्स्ट होगा, कोई भी बात हुई है उसका सब टेक्स्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट का सब टेक्स्ट क्या है, वहां तक भी पहुंचना ये मेरे ख्याल कम्युनिकेशन स्किल में आता है। और उसकी फ्लुएंसी और लैंग्वेज भी उसी के अंदर आती है कि कैसी लैंग्वेज हमें इस्तेमाल करना है। या इमोशनल आउटलेट, डेफिनेटली ये इमोशनल आउटलेट है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि किस तरीके से बच्चा जो है किन फीलिंग से आ रहा है, क्या क्या चीजें थी उसके मन में चल रही थी, वो प्री ऑक्यूपाइड था बहुत सारी चीजों को, तो वो उनको कहीं ना कहीं वो आउटलेट है उसका वहां पर, जिसको वो एक्सप्रेस करता है रेंज ऑफ द इमोशंस को, सैडनेस हो, अग्रेशन हो एंड टेंशंस को रिलीज करता है वहां पर। और उसमें बेसिकली सेफ्टी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वे एंड रिड्यूसिंग एंटी सोशल बिहेवियर, इन सब चीजों को सीखता है कि इनसे कुछ वो जो जिस तरह का एटीट्यूड या उसके दिमाग में जिस तरह का एक डिप्रेशन आ गया है या अग्रेशन आ गया है, वो किस तरीके से उसको, उसकी बॉडी को, उसके बिहेवियर को हार्म कर रहा है, ये उसको समझ आता है वहां पर। या नेक्स्ट, रिलैक्सेशन, ऑब्वियसली थिएटर एक्टिविटीज से वो रिड्यूस टेंशन होता है और मेंटल, फिजिकल और इमोशनल टेंशन से वो रिलीज होता है। फिजिकल फिटनेस, ऑब्वियसली नो डाउट, आई थिंक मुझे लगता है इससे एग्री करेंगे हम लोग कि फिजिकल फिटनेस थिएटर के थ्रू फिजिकल फिटनेस होती है, जिसमें मूवमेंट ऑफ ड्रामा ये इम्प्रूव करता है बॉडी बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को, फ्लेक्सिबिलिटी को और अपनी बॉडी के कंट्रोल को, बॉडी पे कंट्रोल, वॉइस पे कंट्रोल और पूरे बिहेवियर पे कंट्रोल भी ये सिखाता है कहीं ना कहीं। सो दैट ये सारी चीजें जो आई हैं, अब हम आखिर की तरफ भी आ रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारे यूजिंग थिएटर इन क्लास क्या रहा है बेसिकली देखें तो बेसिकली 4 पॉइंट मुझे नजर आए हैं। ए टीचर मे बी एबल टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट एंड लीव बिहाइंड द हायरार्किकल क्लासरूम स्ट्रक्चर एंड हायरार्किकल क्लासरूम अप्रोच। That is the one point जिस पर हम जिक्र अभी बात कर चुके हैं। Student may be able to ask questions without any fear. The second point, and third is student may be able to present their perspective in the classroom unhesitantly. बिना किसी डर के वो पूछ पाए, खड़ा हो पाए, तो शायद वो महसूस करे कि जो सामने खड़े हैं ये मेरा एक अच्छा दोस्त है, इनको मैं बताऊंगा तो ये इनको मैं रिलाई कर सकता हूँ कि इनको मैं अपनी बात बताऊंगा तो ये कहीं से मेरी बात यहाँ से जाएगी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं वो बच्चे को अनहेजिटेंट होने के लिए प्रमोट करती है उस साइड में। टू क्रिएट ए हेल्दी एनवायरनमेंट एंश्योरिंग स्मूथ लर्निंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्लासरूम के अंदर ये क्रिएट कर पाता है। Now we are coming on the हमारे क्या आउटकम्स रहे हैं बेसिकली अगर हम देखें तो an overall environment of learning, that is the one outcome, friendly atmosphere in the class and giving some sense of topic of maths. Actually I am not saying कि actually आपने पूरा मैथ्स थियोरेटिकल एक्टिविटीज से पढ़ा दिया, no I think no, है ना, वो पर्पज भी नहीं है हमारा यहाँ पर। अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि स्पेस हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास कितना है आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर मैं वही चीज अगर डेफिनेटली गीजू भाई की तरह से अगर कर पाता डेफिनेटली इतना स्पेस लेकर के, तो मजेदार चीजें होती हैं डेफिनेटली वो एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे बच्चों के साथ रिलैक्स के साथ चलते हैं
इट इज फैंटास्टिक. बट एक्चुअली आज के इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगता है कि एक्चुअली अगर हम उसको बच्चे को उस सब्जेक्ट की नॉलेज एक सेंस में दे दें, कुछ टॉपिक्स को हम उसके थ्रू बड़े इंटरेस्टिंगली ले लें, तो वो अच्छे से कर पाएगा. क्योंकि मसलन उसने बॉडी का इस्तेमाल किया है उस चीज को दिखाने में, उसकी एक ओनरशिप आएगी उस वर्ड के साथ, उन मैथमेटिकल टर्म्स के साथ कहीं ना कहीं, तो वो महसूस कर पाएगा उसके साथ एक जुड़ाव. दैट इज आल्सो द one thing. And giving some sense of topic of maths, maybe the work upon this stuff. Yeah. The better bonding and connection within or outside the class, student का connection, student teacher का connection, दोनों ही connection मजबूत होते हैं. And after the bonding within the classroom, the concept of mathematics can be easily delivered and explained to the children. That is the point, I think. इसका जो purpose था ये था. Next lecture. Yeah, overall this is the I think using theoretical activities to teach maths will make learning more appealing and enjoyable to the students actually. But enjoyable is the important point actually there. कि enjoyable नहीं है और आप कोई भी चीज करा रहे हैं तो definitely उसका कोई मतलब नहीं रह जाता. And at the same time it will improve their creative thinking and innovation. It can also help introverted and actually insecure students come out of their shell. जो बच्चे बहुत कम बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते. बहुत सारे बच्चे जो बोल पाते हैं एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट होते हैं. इंट्रोवर्ट बच्चे जो बहुत ही छुप के रहते हैं, क्लासरूम में कहीं पीछे बैठे हैं, उन बच्चों को लेके आना, उनसे आगे कराना, उनको कहना, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आना कि यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं और मजे से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कोई क्वालिटी है जो उसको भी नहीं पता है. तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बच्चे को इसके थ्रू हम यहाँ करा पाते हैं, थिएटर के थ्रू. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली it allows student to observe how maths relate to the real world. जिस रियल वर्ल्ड के बारे में कल हम जो कल जो स्ट्रीट मैथमेटिक्स की बात नीता मैडम ने कही थी, किस तरीके से मैंने क्लास रूम में जो चीज पढ़ी है वो फिर मैंने स्ट्रीट में जाकर के उसी जो मैंने क्वाड्रिलेटरल वहां पढ़ा है, वहां पर मैंने होर्डिंग्स में देखा है कोई क्वाड्रिलेटरल या कोई और शेप, तो मैंने तुरंत लिंक किया, तुरंत उसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया चीजों को, तो वो भी ये कर पाता है. And in the last, I don't know, this does math still scare? May go through repeatedly again. It is anyway. अब so much. थोड़ा सा मैं सर बोलना चाहूंगा. तिवारी सर सुन पा रहे हैं क्या? Yes sir. हाँ, तो अगर सर कुछ डायलॉग्स के माध्यम से देखिए, ये मेरे ख्याल से आपकी प्रेजेंटेशन तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक कुछ आप डायलॉग के माध्यम से कुछ अगर करके दिखा पाए सर, मजा आ जाएगा कसम से. तो हम वेट करेंगे कि अगर आप सर कुछ डायलॉग के माध्यम से, क्योंकि वो चीज आप पे बहुत स्ट्रांग है और वही चीज आई एम श्योर कि सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि आप उस फॉर्म में कब आए. एक्चुअली इतनी देर से लोगों के बंधे रहने का मेरे ख्याल से कारण भी यही है कि सब लोग आपको उस फॉर्म में एक्शन में एक्चुअली देखना चाह रहे हैं. तो कुछ भी 2 लाइन 4 लाइन जो भी आप सर करा पाए. It's from a play, किसी प्ले से ले लेता हूँ मैं, है ना जी. And that जिसमें ऐसा करिए जिसमें मैथ्स भी आ जाए और ये सारी चीजें जो अभी आपने बताई हैं वो भी इंक्लूड हो जाए. Yeah. Okay.